welcoming you all on this video. In this particular video, I will be discussing about political science and international relations optional subject. This subject is going to be taught by me at Noida Center in offline mode, and for online subscription, the students of Drishti IAS and even those students who are not associated with us can enroll. Here in this video particularly, I would like to highlight three things. Why political science optional? What are the myths associated with political science optional? And our approach towards this optional. Make no mistake that this optional has been a tremendous success in the last 7-8 years. I will show you exactly the evidence. These are not merely words that I am saying. There are evidence to show it to you. This year as well, All India Rank 1 and All India Rank 2. Both of them had your political science as their optional. And whatever information we are getting, almost 160 or 65 students have cleared this year's examination with political science as their optional. And if you see the record of last few years, last 7 years, then you will realize that this optional has been the most successful optional among all the optionals. All the optionals. I'll show you the UPSC report as well. Okay. Now the first thing, before I would like to tell you everything, it's pertinent that I'll tell you something about myself. Okay. Then we'll jump into the details of our program. Okay. So, my name is Rajiv Chauhan, and I have been teaching UPSC aspirant for more than 8 years now. And Drishti IAS I have joined almost, it's been more than a year now. And as far as UPSC experience goes, I have given all 6 mains and 4 interviews. And before that, I had some corporate experience as well. I was working in London for HSBC Bank. And before that, I was in college. I graduated as an engineer. Okay. So this is brief introduction about me. Now let's sail through this. I made one point before we have started with anything. I made one point. And the point was that it has been the most successful optional in the last 7-8 years. The success rate of PSIR optional hovers somewhat around 150 students per year. 150 के आसपास लगभग वो रहता है. और अगर कोई और ऑप्शनल के बारे में अगर आप देखें, मैं डेटा भी दिखाऊंगा आपको, तो इट इज बिलो 100 से नीचे रहते हैं. I'll show you the exact data as well. Okay, the UPSC published data. Even it's a wonderful thing, and even your parliamentary committee last year mentioned that the people who are having technical background, engineers and science background, they are passing in great numbers, and they are not opting their own subjects, mechanical engineer, mathematics, or for that matter, history, biology, physics, such kind of subject. They are rather coming into your humanity optional, and they are taking up optional like political science, and they are cracking through this examination. So you will wonder one thing, you being a student, a new student, you will be wondering, एक दिमाग में रहता है कि मैंने जीवन भर साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, टेक्निकल सब्जेक्ट लॉ पढ़ा, अब पॉलिटिकल साइंस जैसा ऑप्शनल कैसे ले सकते हैं, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है. तो एविडेंस कहता है कि मोर देन 80% स्टूडेंट क्लियर दिस एग्जामिनेशन हैपन टू बी योर पीपल फ्रॉम योर बैकग्राउंड लाइक engineering and medical science and your commerce and your science, basic science, the pure science. Okay, ये सब रहता है. तो और वो ले रहे हैं ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड अबाउट इट. ओके, तो क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और जो मैंने बोला वर्ड, वो वर्ड भी मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली यूपीएससी के रिपोर्ट में. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग that people choose, I will tell you exactly about political science now. Okay, people choose this optional and they get very good ranks. One more important fact I would like to highlight, that before 2014,
2014 से पहले students were not opting for political science. Political science optional was not famous at all. Seldom you'll find people qualifying this examination and having political science as their optional. Now, what happened in 2014, that from 2014, people have started taking political science optional. Okay. Now, here one thing we have to notice, I'll tell you, that the UPSC syllabus was changed in 2013. 2013 में change होता है. That year we were giving mains examination and we did not have much time to think about optional and all. Okay. So we were bogged down by the new things that has been added in the syllabus, like ethics paper, world history, and the governance, social justice, society. बहुत सारा नया चीज आ गया था, तो we were bogged down by that. When we realized in the next attempt, people realized, the new people and the old people as well, they realized that which optional should I take that will help us maximum in your general studies syllabus, essay or interview. When we saw the syllabus, then we realized that the maximum convergence among all the subjects, मैं ये भी चीज प्रूव कर दूंगा आपको, among all the subjects, political science has maximum convergence. सबसे ज्यादा convergence political science का है. जनरल स्टडीज सिलेबस के लिए लगभग मैं अगर बताऊं तो 350 मार्क्स क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, not even reading your general studies. You can do it with the help of political science optional. How? I'll tell you exactly. Okay. Now, first thing first, I made a claim that it is the highest number of students get selected from this optional. Do I have an evidence? Yes, sir. I do have an evidence. मैं आपको दिखाता हूं. ठीक है, अच्छे से दिखाते हैं. ये देखिए, दिस इज द लास्ट पब्लिश्ड यूपीएससी रिपोर्ट. ठीक है, ये यूपीएससी का रिपोर्ट है. ऑलराइट. और यूपीएससी का रिपोर्ट में जब हर साल निकालता है तो पिछले साल का दे गिव द डेटा रिलेटेड टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कि कौन सा ऑप्शनल से कितना सिलेक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल देता है. हर ऑप्शनल के बारे में देता है. ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं 1 से लेके 40 तक है टोटल. और यहां पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर वी हैव योर, ओके, वी हैव योर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा है यहां पे. ये यूपीएससी का रिपोर्ट है, आप जाके देख सकते हैं. सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड करके यू विल फाइंड द सेम थिंग. ओके, अब यहां पे हमें पॉलिटिकल साइंस पहले आता हूं. ठीक है, दिस इज 35 नंबर पे पॉलिटिकल साइंस है. इसमें लिख रहा है पिछले का पिछले साल का रिपोर्ट है. ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है, आएगा तो फिर वो भी सेम ही चीज होगा, इससे ज्यादा ही बेहतर हुआ है. इनफैक्ट कहते हैं कि मेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इज 1571. ठीक है, 1571 अपीयर किया, और जिसमें से पास किया है कितना, 140 लोग, 140. एंड देयर वाज दिस टाइम जब 173 स्टूडेंट भी पास किए थे, और इसका पासिंग रेट है 8.9%, लगभग 9% के आसपास. मतलब आप एग्जाम देते हो तो आपका चांस ऑफ सक्सेस जो है, मतलब 100 में से 9 लोगों का सिलेक्शन इस ऑप्शनल से हो रहा है. दिस इज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल. नाउ लेट मी को रिलेट इट विथ अदर फेमस ऑप्शनल्स. ह्यूमैनिटी का ले लेते हैं, मोस्टली ह्यूमैनिटी ऑप्शनल्स आर फेमस ऑप्शनल. लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका सोशियोलॉजी, इसमें जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं. इसमें मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, ये सब है. सोशियोलॉजी देखिए. ठीक है, सोशियोलॉजी है. इसके बाद इसमें भी ठीक ठाक है, 1087 स्टूडेंट ने किया, लेकिन पास जो किए हैं सिर्फ 92 लोग पास किए हैं. दिस इज नंबर 2. ठीक है, फिलॉसफी ऑप्शनल भी ह्यूमैनिटी का हम मान लेते हैं, उसमें पास किए हैं 20 लोग. ठीक है, गॉट इट. चलिए अब इस साइड आते हैं. एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी में 1159 स्टूडेंट अपीयर किए हैं और पास किए हैं 90 स्टूडेंट. ठीक है, दिस इज थर्ड. और 7.8% इनका सक्सेस रेट है. ठीक है, उसके बाद इधर देख लेते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में 25 लोग पास किए हैं. ठीक है, देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 66 लोग पास किए हैं. देन हिस्ट्री, नॉट डूइंग गुड, 25% 25 लोग ही पास किए हैं मात्र. ठीक है, लॉ ऑप्शनल 21,
ठीक है। देन लिटरेचर ऑप्शनल है पूरा, ठीक है, यू कैन सी हियर लिटरेचर ऑप्शनल है, ऑलराइट। और साइकोलॉजी ऑप्शनल देखिए 15 लोग पास किए हैं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें से मात्र 31 लोग 31 लोग पास किए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज टू बी द मोस्ट फेमस ऑप्शनल, टॉप 10 में जो स्टूडेंट आते थे उसमें इनफैक्ट 7 लोगों का ऑन एन एवरेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल होता था, लेकिन आफ्टर 2012 यूपीएससी हैज बुचर्ड इट, ठीक है। तो इसीलिए रिजल्ट इसका खराब है। नहीं तो एक जमाने में जब व्हेन वी केम टू स्टार्ट प्रिपरेशन देन कुछ बहुत खास उस समय था, बहुत अच्छा था। लेकिन दिस टाइम दिस इज यूपीएससी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। अब ये यूपीएससी का रिपोर्ट खुद कह रहा है कि भाई क्या है रियलिटी, ओके। तो पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं कि 140 स्टूडेंट ने क्लियर किया है। दिस ईयर पीपल आर सेइंग कि 160 से ज्यादा है, ओके। तो रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा, लास्ट ईयर का भी रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा। लास्ट ईयर का भी नहीं आया, इस साल का तो अब अगले साल आएगा, ओके। एक चीज यहां क्या कहता है देखो, हाउएवर 80% of the optional subject opted are recommended candidate were related to humanities। मैंने क्या बोला, 80% से लोग जो ज्यादा रेकमेंड हो रहे हैं उसका सब्जेक्ट जो है ह्यूमैनिटीज है, जिसमें कि 63% आर इंजीनियर्स, बीटेक किए हुए लोग हैं वो सब्जेक्ट ले रहे हैं। मतलब कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को, पहला चीज एक मिथ दूर कीजिए कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो है उसमें कोई बहुत एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए या कुछ चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स क्वालिफाई कर रहे हैं, दे हैव नॉट रेड एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। 4 साल में 0 पढ़ा, 2 साल में +2 जब किया उसने तो 6 साल तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, बस आए 1 साल पढ़े निकाल दिए, ठीक है। तो दिस ऑप्शनल ह्यूमैनिटी ऑप्शनल ले रहे हैं लोग, और उसमें भी सबसे अधिक क्या है, पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं। अब क्यों लेते हैं मैं उसके बारे में दूसरा पॉइंट देता हूं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 पहला हमने प्रूव कर दिया आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग आई लाइक टू से, ओके। अब सेकेंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाई पीपल आर टेकिंग पॉलिटिकल ऑप्शन, मैं अगर बताऊं बहुत सारा चीज है, लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका कन्वर्जेंस, convergence with general studies. Particularly, this is something that is the driving force why people are opting. क्योंकि अगर इतना ही खास ऑप्शनल होता तो 2014 से पहले भी फेमस होता, 14 से ही क्यों फेमस हुआ? लास्ट में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, लास्ट 2015 से लेके अभी तक, मतलब 10 साल में 3 ऑल इंडिया रैंक शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस से आया है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक व्हेन आई एम सेइंग, ठीक है। और ढेर सारे, इस बार तो 1 और 2 दोनों ही उसी के हैं। तो कन्वर्जेंस विद सिलेबस। अब देखो पॉलिटिकल साइंस का अगर देखें तो जीएस पेपर 2 इसमें आता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें से आपका कन्वर्जेंस लगभग पूरा है, ठीक है, बारिंग एक्सेप्शन कि गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस क्या होता है, मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस क्या है, उसको छोड़ दिया जाए। सोशल जस्टिस का थोड़ा पार्ट, लिटिल पार्ट, नॉट ऑल, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो ये कन्वर्जेंस लगभग पूरा होता है। यहां पे आप 250 नंबर का ये होता है, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए, इसका मेंस प्रिपेयर्ड हो गए, कुछ नहीं करना है। चलो जीएस पेपर 1 का देखते हैं। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का आपको सेक्शन है, जिसमें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना, यू गॉट टू रीड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अगर देखते हो तो पेपर 1 सेक्शन बी में जाएंगे तो पूरा ही इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, कि गांधीयन फेज क्या था पहले, उससे पहले मॉडरेट फेज क्या था, एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या था, ऑल राइट, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू रीड। रिवोल्यूशनरी का क्या योगदान था, ट्रेड यूनियन का क्या योगदान था, फार्मर्स का क्या योगदान था, वुमेन का क्या रोल रहा है, ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी स्टडीड हियर एज वेल, ठीक है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से मेंस में अगर देखा जाए तो 2 से 3 सवाल रहता है इन जनरल, ठीक है। तो फ्रॉम देयर यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन एज वेल। चलो पेपर 1 में ये हो गया। अब पेपर 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पेपर 3 में तुम्हारा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक है, मैं बताता हूं। एक टॉपिक है प्लानिंग,
एक टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन, एक टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, एंड देन एज अ होल जो इससे पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस इंडिया का, ये सब चीज मतलब पूरा नहीं बता रहा, मैं नहीं कह रहा बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी पर नहीं, सिर्फ मेंस का ये सब जो पोर्शन है इट हैज डायरेक्ट कन्वर्जेंस विथ द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस अगर देखेंगे आप, पेपर 1 सेक्शन बी उसमें आपको ये सब चीज मिल जाएगा। हम लोग को पूरा एक्सप्लिसिट टर्म्स में पढ़ना है ये, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स आता है, फिर आता है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट सेक्शन में इन्वायरमेंट रिलेटेड जितना भी ट्रीटीज हुआ है एंड एग्रीमेंट्स हुआ है, ठीक है, वो आपको हम लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि, और हाँ इसमें एक चीज और पढ़ना है, यस वन मोर थिंग, WTO ये सब जो है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब पढ़ते हैं आप, ADB, आप NDB और AIIB, ठीक है, ऑलराइट, ये सब हम लोग को यहां पर भी पढ़ना है, ठीक है। इन्वायरमेंट में ट्रीटीज पढ़ते हैं तो हम लोग को भी इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में देयर इज दिस पॉइंट, आप लिखा है एक्सप्लिसिटली कि रीसेंट ग्लोबल कंसर्न, और उसमें लिखा है इन्वायरमेंट, एंड पेपर 1 सेक्शन ए में लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इन्वायरमेंटल एंड सोशल मूवमेंट लिखा है। तो ऑल द चिपको मूवमेंट, ऑल दिस मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, ऑल दिस मूवमेंट हैज टू बी रेड इन पॉलिटिकल साइंस। और जितना भी ट्रीटीज है, पेरिस ट्रीटी हुआ था, उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, all these things, how it has evolved, how the environmental negotiation goes on, all this thing has to be studied there, ठीक है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ कुछ चीज है जैसे कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ऑल दिस थिंग्स, ओके। नाउ वो सब जो चीज है वो भी हमें पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है, गॉट इट। अब जहां तक कि साइंस टेक का सवाल है तो सर साइंस टेक से नो कन्वर्जेंस है, एब्सोल्युटली, ओके, ठीक है। तो यहां भी आप कन्वर्जेंस देख रहे हैं। पेपर अगर 4 का बात करें, एथिक्स में बेटा 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन जो आता है वो फिलोसॉफिकल नेचर का आता है, ओके। 3 क्वेश्चन है जो आपको फिलोसॉफिकल नेचर का आता है, ठीक है। अब वो फिलोसॉफिकल नेचर का क्वेश्चन है, वो माना जाता है आमतौर पे दैट आर, आप चेक कर सकते हो, एवरी ईयर दे आस्क 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस फिलोसफी, ओके, माना जाता है। और सब क्वेश्चन के कंपैरिजन में दैट दोस क्वेश्चंस आर द टफेस्ट क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें उस क्वेश्चन के बारे में तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है 2 ऑप्शनल के मदद से। वैसे तो अपने बिना ऑप्शनल का भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन अगर हेल्प है तो, इफ देयर इज एनी हेल्प देन व्हिच कैन हेल्प, one is philosophy optional, other is your political science optional, because in political science optional you read about Plato, Aristotle, Machiavelli, Marx, Gramsci और जितने भी हैं, लॉक, हॉब्स, ऑल दिस थिंग्स वी रीड, हम लोग वहां पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो मदद कर सकता है। चलो ठीक है। अब एस्से में क्या, एस्से में हमें मदद कर सकता है? तो मैं एक चीज बोलूं, पहला फर्स्ट स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू से, कोई मदद नहीं करता है सर। किसी का फिजिक्स ऑप्शनल हो, दे कैन राइट अ ब्यूटीफुल एसे एंड स्कोर 140 प्लस। पीपल हैव accountancy, commerce and accountancy, they can score good as well. Essay doesn't require any specialization in optional, ठीक है। बट अगर कोई ऑप्शनल थोड़ा बहुत मदद करता है तो आपको 2 ऑप्शनल, फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस, यही 2 ऑप्शनल मदद करता है। अदर ऑप्शनल डजंट प्ले मच रोल। I'll prove it to you. In the last 6 to 7 years, UPSC had changed its pattern. Now UPSC is asking only those kind of essays which are philosophical in nature. They don't give you direct essay on education पे लिखो, science tech पे लिखो, ऐसे नहीं आ रहा है, या environment पे लिखो, women पे लिखो, ऐसा नहीं आ रहा है। वो किस चीज पे लिख रहा है? वो बोल रहा है कि philosophical abstract दे रहा है। एक कोट दिया था, real is rational is real, real is rational। अब इसको लिखो, ये हीगल ने बोला। हीगल को कहां पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। जब मार्क्स पढ़ते हैं तो हीगल का प्रीकर्सर लेके आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट। तो फिर अगर कोई मदद कर सकता है तो यही फिलॉसफी ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल मदद कर सकता है, जो भी थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है, मैं अगेन कहता हूं, नॉट एट ऑल बेटर नीडेड कि आप का कोई भी ऑप्शनल हो, ऐसे यू कैन डू,
ठीक है, चलिए इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू में कितना मदद करता है। इंटरव्यू का अगर बात करें तो इंटरव्यू मोस्टली आपका जो DAF होता है उसी से लगभग 60 to 65% क्वेश्चन जो है वो DAF से ही पूछा जाता है। वो आप इंटरेस्ट, हॉबी ये सब लिखते हैं, घर का पता, ये एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वहां से मोस्टली पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ चीज जो पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स से पूछा जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में सबसे जो हॉट टॉपिक रहता है वो मैं बता देता हूं, 3 चीज का रहता है। एक इंटरनेशनल रिलेशन जो अक्सर पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी और थोड़ा सा सोशल इश्यूज एंड पॉलिटी, दोनों को मिक्स कर दो, वैसा पॉलिटी जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, ठीक है। वक्फ पे पूछ सकते हैं या इस तरह कोई भी चीज से पूछ सकते हैं। मोस्टली इट फॉल्स इन दिस 3 डोमेन्स, ओके। और इसमें से आप ये पढ़ते हो और ये वाला चीज पॉलिटिकल साइंस में आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। These 2 things you study. So there is help it here as well. Now when I said that you can solve 350 marks of question with the help of political science optional in general studies, I कैसे मैंने कैलकुलेट किया। जनरल स्टडीज पेपर 2 लगभग 250 नंबर रख लो, ठीक है। इसमें आता है 3 क्वेश्चन, उसमें बहुत हेल्प मिलता है, तो वो 3 क्वेश्चन जो है आपका वो 30 मार्क्स रख लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, 10-10 मार्क्स का रख लेते हैं, 30 मार्क्स। और बोलता हूं मैं कहीं हेल्प नहीं करता है, 2 यहां हेल्प करता है और भी क्वेश्चन में, लेकिन मैं गिनूंगा नहीं, ठीक है। अब इतना जितना बच गया, ठीक है, इसमें रिमेनिंग आपको नहीं भी कुछ तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपका लगभग कितना हो जाता है, 100 मार्क्स आप उसको एज ए होल जोड़ लो, तो नियर अबाउट 340-350 मार्क्स, और समटाइम 360 मार्क्स इवन यू कैन solve with the help of this, okay। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। यही एकमात्र, मैं अगर सही बात बताऊं, बोलने के लिए तो हजारों बातें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन से, पुट अप लॉजिक आफ्टर लॉजिक, लॉजिक आफ्टर लॉजिक, बट द ट्रूथ इज दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रीजन व्हाई you have here no other optional has such kind of convergence। आप खुद चेक करो, मिलाओ, and then you can do the math। this is one of the major reason, ठीक है। अब other things, एक चीज और है, that why famous it is a famous optional। so मैं कहूंगा that one reason is the syllabus nature is very scientific as well as your वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर YouTube पे भी देखते हैं, सबसे ज्यादा कंटेंट जो है वो आपका कौन सा कंटेंट है जो पीपल आर इंटरेस्टेड टू वॉच, उसमें अदर देन दिस वल्गरिटी एंड ऑल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आई एम सेइंग, ओके, सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो है इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, because that subject is so interesting, what happened, how it has its proceeding, all these things, knowing the history of anything, it become extremely easy, बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट, everyone has interest in international relation। you will not find people who do not have interest in international relation। even if you go to a चाय वाला दुकान, you start discussing international relation कि चाइना ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, they will have something to say about it। so it's a genuine interest, ठीक है। and secondly the paper 1, वो जो है आप फिलॉसफी के बारे में समझते हैं जब मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, या हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी केम, आज के संविधान आया कहां से, कैसे आया है, तो दिस इज समथिंग ना दैट यू कैन कोरिलेट द व्हाई वी हैव ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाई वी अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, फ्रॉम वेयर दिस डेमोक्रेसी केम, ठीक है। जो कौटिल्य का सिद्धांत क्या था, मनुवाद से आजादी, सो मेनी पीपल सेज, ठीक है। तो भाई मनु ने बोला क्या, ये सब समझना, these are the things that is there in the syllabus that makes this your paper very interesting, ठीक है। जब इंटरेस्ट रहता है तो याद अधिक रहता है, सीधी बात है। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो यू कैन नॉट रिमेंबर मच, ठीक है। तो वो चीज है। अनदर थिंग आई वुड से is that people choose this optional based also on, it is valid with almost all most of the famous optionals, जिसमें कि अच्छा मटेरियल मार्केट में मिलता है, अच्छे बुक्स मिल जाएंगे, अच्छा टीचर्स भी मिल जाएंगे, एंड
सपोर्ट जो है सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मोस्ट ऑफ द फेमस ऑप्शनल सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड द स्टडी मटेरियल रीडिंग मटेरियल इट इज फैंटास्टिक, ठीक है, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। तो वो एक कारण है। तो these are the 4-5 reasons why this optional is at the crescendo, at the apex, at the top of the performance ladder, ठीक है। तो ये है ये चीज। तो हमने पहला जो अपना पॉइंट था why PSIR, this is done। अब कुछ मिथ है PSIR के बारे में, ठीक है। there are some myth related to PSIR। एक मिथ ये है कि सर ये सिलेबस बहुत लंबा है, ठीक है। और दूसरा मिथ है कि सर ये ऑप्शनल बड़ा डायनेमिक ऑप्शनल है। नाउ लेट्स डेल्व इनटू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं एकदम रिजनेबल आपको आंसर देता हूं। पहला चीज कि सिलेबस लंबा है, जी हां, किसी और ऑप्शनल जो है उसमें से कंपेयर किया जाए तो सिलेबस लंबा है, लेकिन कितना लंबा है दैट इज अ मूट क्वेश्चन। आई विल कम टू दैट। 3 optionals, history, geography and political science. These 3 optionals have a little lengthy syllabus, no doubt about it. Now here I will put up the points. Remember it. Now, number 1 point, that in some optional UPSC has written everything. हर कुछ उसने एक एक पॉइंट लिख दिया है, elaborated upon it, ठीक है। अब कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि दे हैव नॉट इलेबोरेटेड। आई विल नॉट नेम एनी पर्टिकुलर ऑप्शनल, इट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल फॉर मी टू से दैट, बट इफ द सो कॉल्ड स्मॉल ऑप्शनल का अगर देखें तो सिलेबस छोटा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे आपका ऑप्शनल में कैसे लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन और थिंकर्स का नाम भी दे दिया है। तो जो वहां पे एक वर्ड में लिखा गया है वो यहां पे एक सेंटेंस में लिखा गया है। तो योर सिलेबस इज इलेबोरेट सिलेबस, थोड़ा इलेबोरेट सिलेबस है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट in particularly in political science optional there is redundancy as well. Same thing has to be read so many times. जैसे कि you will read Karl Marx, ठीक है, then you will read Marxism, वो Karl Marx is Western political thinker, then you will read about Marxism, that is political ideology, then you will read about political theory like state, like justice, like freedom, उस सब में भी फिर मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में आएंगे, उसमें भी क्रिटिसिज्म या इंटरप्रिटेशन है, तो वहां पर भी पढ़ेंगे। मार्क्स को एक बार पढ़ा, अप्लाई कम से कम 6 बार करेंगे। यही जॉन लॉक, J.S. मिल, you will read about the same person again and again in different parts of the syllabus. तो रिडंडेंसी बहुत ज्यादा यहां पे है। तो अगर उस रिडंडेंसी को हटा देता हूं मैं तो स्क्वीज हो जाएगा, नॉट लेस देन आई कैन से लगभग 10 to 12% ऑफ द सिलेबस मिनिमम इट विल रिड्यूस, ठीक है। चलो अब अनदर थिंग इज कि अगर लेंथ लंबा है तो कितना लंबा है। तो मैं बहुत अथॉरिटेटिवली इस चीज को कह सकता हूं कि लेंथ इज समवॉट, यू कैन से इट इज नियर अबाउट 15%, 15% to 20%, maybe 15% to sure, not sure about 20%, more than any other optional syllabus. But I will make one very important point for you. If you are thinking about 280 to 90, 300 or more than 300 marks, then no optional syllabus is a small syllabus. You got to read those things in very extensive manner. Because question in such subject are very deep in nature, very generic in nature. वो generic nature का question होता है, उसको specialize बनाने के लिए हमें पढ़ना बहुत पड़ता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। If you are thinking about 300 marks, then not even a single optional you will find in UPSC which is small. Okay, अगर science optional का अगर देखो बात, तो science optional is even bigger option then the political science, history or geography for that matter optional.
क्यों? क्योंकि हर चीज को इलेबोरेट कर दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि 15% सिलेबस ज्यादा है, नॉट मोर देन दैट। ओके, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, द मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 2 क्या है? कि लोग कहते हैं कि बहुत डायनेमिक है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, पहला चीज जो इवन इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड चेंज, क्या चीज कंटिन्यूटी में रहा, क्या चीज चेंज में रहा। ठीक है, तो चेंज आर वेरी वेरी लेस, कंटिन्यूटी इज द ऑर्डर। इंटरनेशनल रिलेशन और या फॉरेन पॉलिसी जो है वो सबसे धीरे धीरे मूव करने वाला पॉलिसी है। वन एग्जांपल आई विल गिव यू। From the beginning 1947 till 1992 we did not have a relationship, formal relationship with Israel. हमारे पास कोई फॉर्मल रिलेशन इजराइल के साथ नहीं था। 92 में हमने इजराइल रिलेशन एस्टैब्लिश किया, फॉर्मल रिलेशनशिप, और 92 से लेकर 2017 तक सेम पॉलिसी चलता रहा, हाइफनेशन का पॉलिसी। इजराइल पैलेस्टीन को हम हाइफनेट करके देखते थे। 2017 में चेंज आया और हमने डी हाइफनेशन कर दिया। तो इतना साल लगा 92 से 2017, 25 साल, ठीक है, लगा कि चेंज होने में। तो चेंज कम है। अगर छोटे मोटे क्वेश्चन ऑप्शनल में नहीं पूछे जाते हैं, जो मेजर चेंजेस है, जो मेजर शिफ्ट है, उसके बारे में पूछा जाता है। ये चेंज बहुत स्लो होता है, पहला चीज ये समझिए। ठीक है, और दूसरा चीज, आप चाहे कुछ भी पढ़िए, कोई भी ऑप्शनल पढ़िए, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। आपको पॉलिटी का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। आप पीटीओ मेंस नहीं दे सकते बिना उसको पढ़े हुए। आपको इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, किसी भी हालत में पढ़ना होगा। रिमेंबर इट, ओके, यू गॉट टू रीड इट, यू हैव नो चॉइस। अब पढ़ तो ऑलरेडी रहे हैं हम, तो ऑप्शनल के लिए क्या कुछ विशेष पढ़ना है? जी नहीं, विशेष कुछ नहीं पढ़ना होता है। जस्ट वन थिंग, सिर्फ एक चीज है, ठीक है, एंड दैट वन थिंग इज योर, ओके, जस्ट वन मोमेंट। दैट वन सिंगल थिंग मैं बोलूंगा, वो है आपका ऑप्शनल का जो नाम लोगों का थिंक करने की। कोई चीज बोला किसी ने तो किसी ने बोला, बस उतना कर लो, हो जाएगा। तो देयर इज नो स्पेशल रीडिंग, दिस इज कंप्लीट मिथ। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स कम टू आवर अप्रोच। देखिए हमारा अप्रोच क्या होगा कि एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन फुल डिटेल। पूरा अच्छे से हम एक एक चीज कवर होगा। एवरीथिंग विल बी डिक्टेटेड, द बेस्ट पॉसिबल नोट्स विल बी सप्लाइड टू यू। एंड दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज आई विल टेल यू द आर्ट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। विद द रनिंग ऑफ द क्लास वी विल मेक शॉर्ट नोट्स। रिमेंबर, विदाउट शॉर्ट नोट्स, टॉपर को भी सुना होगा, विदाउट शॉर्ट नोट्स यू कैनॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अनदर थिंग इज मेंटोरशिप। ठीक है, I am not sure whether it is true or not, but many of my students previously told me that many teacher doesn't give time. लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जनरल स्टडीज में टाइम नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑप्शनल में अगर टाइम नहीं देते हैं तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको समय देना पड़ेगा स्टूडेंट को। ठीक है, तो पहला चीज कि वी विल हैव अ ग्रुप, जिस ग्रुप में हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन आएगा 24/7 यू कैन पुट, आई विल आंसर दैट। क्लास में तो पूछ ही सकते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी जूम सेशन होगा, जो फिजिकल वाले हैं उनको भी जूम सेशन होगा। तो जब जब आपको बात करने का मन होगा यू कैन टॉक टू मी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर उससे भी दिक्कत हुआ तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकता है। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, ठीक है, कि हैंड होल्डिंग टिल यू क्लियर द एग्जामिनेशन। जिस दिन आप पास कर जाएंगे आप अपने टीचर को भूल जाइएगा, मुझे कोई गम नहीं है, सिकवा नहीं होगा। लेकिन तब तक अगर आपको हेल्प नीडेड है, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। दिस इज माय फंडामेंटल नेचर एंड दृष्टि IAS ऑल्सो होल्ड सच काइंड ऑफ वैल्यूज। ऑलराइट, अब जो शॉर्ट नोट्स का मैं एक चीज बताता हूं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं एक अपना क्लास का लास्ट जो बैच था उसका कुछ स्लाइड्स लाया हूं, हैव अ लुक, इसको थोड़ा देखिए। ठीक है, ये जर्मी बेंथम को लिखाया है हमने। ठीक है, जर्मी बेंथम को बताया है। ठीक है, ऑलराइट, देन स्कीमेटिक पूरा पूरा जो आपका कोर्स कवरेज होगा विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक।
कि ताकि एकदम एक एक चीज क्लियर हो, क्रिटिसिज्म, ठीक है। देन देखो बेंथम और मिल के बीच में क्या था, पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर कहा जाता है। तो बेंथम का क्या सिमिलरिटी क्या था, डिफरेंस क्या था, क्लियर कट आइडिया, ऑल इन स्कीमेटिक मैनर, ठीक है, ठीक है। एवरीवेयर इट इज स्कीमेटिक, हर जगह आपको स्कीमेटिक मिलेगा, लिबर्टी का आइडिया, ठीक है। मिल ने क्या दिया था, मिल से पहले क्या था, नेगेटिव लिबर्टी, मिल के बाद क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी। तो कैसे शिफ्ट किया इन ए स्कीमेटिक मैनर वी विल लर्न, ठीक है। लिबर्टी देखो, लिबर्टी का पूरा स्कीमेटिक, ऑलराइट। चलिए ये वाला हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन का भी एक दिखाता हूं, इंडिया और जापान का रिलेशन है, इनिशियल ईयर कैसा रहा इन स्कीमेटिक फॉर्मेट, ठीक है। एंड दिस इज नॉट लाइक स्कीमेटिक मैं पहले से लेके आके बनाऊं, नहीं, मैं आपके साथ बोर्ड पे सामने सामने बनाऊंगा, ठीक है। कोल्ड वॉर पीरियड में कैसा रहा, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड कैसा हुआ, ठीक है। 21st सेंचुरी में किस तरह से मूव कर रहा है रिलेशनशिप, पूरा वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन है, जापान के साथ का इशू क्या है, नेबरहुड का इशू क्या है, जापान का इंटरनल इश्यूज क्या है। अब ये सब जानने के बाद लगता है कि हाँ कैसे, हाउ दे विल अप्रोच, आप खुद सोचना शुरू कर देंगे। एंड देन दिस वन, ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ एक चीज और, दिस इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ आवर प्रोग्राम, seldom you will find political science teacher teaching with the help of maps. But maps are very important. Without map you cannot understand fully, because geopolitics is about map. You don't understand the geography, you will not understand the politics associated with it. ठीक है, सोचने वाली बात है कि जो इंडो पैसिफिक का क्या रेलेवेंस, साउथ चाइना सी में क्यों वो हो रहा है, कहाँ पे है, किस इसमें है, ठीक है, ये सब हमें जानना जरूरी। तो हर चीज का हम लोग मैप बनाएंगे। दिस इज द मैप आई हैव ड्रॉन इन द क्लास, इट इज अबाउट ईस्ट चाइना सी डिस्प्यूट, ओके। सो दिस इज द आवर अप्रोच, ठीक है। ऑल द पोर्शन दैट इज डायनामिक इन नेचर जो कहते हैं, तो आई ऑलवेज कीप शेयरिंग। जैसे कुछ बच्चे हमसे 4 साल पहले पढ़े, लेकिन आज बहुत सारा चेंज हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हैज ब्रॉट मैसिव चेंज। सो द आर्टिकल्स, द थिंग्स, द कंटेंट दैट आई गैदर, I share with them as well, even in today's time. Though they have been a student of a different institute, they have been associated with me at a different institute, still, but doesn't matter, institution doesn't matter, they have been my student, they trusted me. So it's become my moral duty to provide them with all such material, all such new things that I provide to my new student, okay. So this is what it is, and I think that I have given clarity. और कुछ होगा तो you have the number. And in the last, I'd like to say that I will be teaching political science offline batch in Noida center exclusively, no other center, only at Noida, okay. And rest when the class will start, we'll meet you. So thank you very much. I hope you have learned quite a few things. Thank you. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.